In online session, we will discuss about some technological changes that happen in Pakistan. So I think this is one of the best achievement that happened in Pakistan regarding the PSW. All of you know about the PSW. PSW is a Pakistan single window. So what is Pakistan single window? Pakistan single window again is a technical technological initiative of supply chain 4.0 or industry 4.0. So in this initiative, more than 80% of the entities are well connected. So all the import and export processes throughout these countries is going through this process, right? So in this session, we will discuss about what is PSW and how it will work. And similarly, before the PSW, we have a VBOC, how it's work. And before the PSW, we were working on the manual documentation. So we have a very special specialist that we have is Mr. Nadeem. So Nadeem will explain about the PSW and show the real demo of the real world for the academic purpose, how it operates and how it look like. So before proceeding for the further session, I just want to go through the Pakistan import policy. As you know, every country has a policy. Either is in the form of the import or export policy, right? So import means something that are coming within the country, inside the country, and export means you are selling something outside of the country, means that the goods are going from Pakistan to other countries, right? So in Pakistan, we have a state bank regulatory that run the all the trade, including the import and export. So we have a chapter one that's called the imports law actually. So in this law, all the statement and all the prohibited items or allowable items that are stated there, right? Similarly, we have a chapter 12 as well. That's telling us about the export law actually. Other than that, all of you know, we have Incoterm. So Incoterm 2020 is right now applicable throughout the globe. And in Pakistan, these are the Incoterms that are allowable. Uh, First one is the FOB, Free Board, FCA, Free Carrier, CFR, Cost, Freight, and CPT is the Carriage Batch to an Experts, right? So these are the Incoterm that we required. Then that Incoterm, as all of you know, it decide the honor and as well as it decide the reward and the risk transfer as well. Other than that, second important thing that all of you should know is about the mode of payment. So you guys have heard about the LC, that's called the letter of credit. So there are two types of the letter credits. One is called the side. Side means at on the shipment arrive at the port, outstanding payment automatically transmitted from bank A to the bank B. So LC side means payment is existing executed after the shipment arrival. Usage is nothing but is about the defer payment, right? So LC usage means you have a credit term for 10 days, 15 days, 30 days, 60 days, 120 days, 180 days. So that's the usage. So throughout the trade, side means, at the arrival, and the usage means is the outstanding one. The second term that is mostly used in the mode of payment is called the bank contracts. In the bank contract, there are two very familiar products that we are using in the day-to-day trades. First is called the DP, it is a document against payment, and the DA is the document against acceptance. So again, document against payment is the immediate, that the side, and the document against acceptance is the users, right? So this is two other terms that are regularly using in our commercial term actually in our open trade. The third payment term is the open account. Again, this is DNP, DP. Again, this is the document against payment, and DA that's again the documents against acceptance. So DP what means documents against payment means immediately the payment is going to be paid, and the DA means document against acceptance. This is a user's case where you have a certain time interval, 30 days, 60 days, again, the agreement between seller and the buyer. The fourth one is the advance through the LC. So we can also transmit sometimes the supplier required the advance that is right now in current Pakistani situation that is prohibited due to shortage of the USD and other currency. So there is a possibility we can send the advance
to the supplier, to the international supplier, but this is only allowable for the commercial importer. Sorry, it's to the industrial manufacturer. So commercial importer cannot transmit any money. The last topic that we have to, second last topic, in fact, is UCP 600. All the SCs that LC that are derived through the UCP, that's called the Uniform Custom and the Practice or Documentary. So in the, under the USCP, they are telling the clauses. So there are 39 clauses or articles that state how LC should be developed and what is the terms and condition that must be put into the LC actually. The Incoterm 2020 we have already discussed is around 11 Incoterm. So as in Pakistan, we have already discussed these fives are allowable. Other we cannot allow. If anything happened, then we have to take the special approval from the State Bank. So now proceeding to our main topic, how to calculate the custom duty. What is the PCT, HS code, document requirement, how it run in Pakistan through the PSW. So last portion will be covered by Mr. Nadeem that is with us. And I just want to explain about these two terms and again the custom duty as well. So as you know, HS code is the harmonized standard code, or PCT is the Pakistan custom tariff. So it means all the material that are coming into the Pakistan or going out of the Pakistan, the tariff is determined through the HS code or PCT. So as we have discussed earlier, there are eight digits number is there. So even if you want to buy fish, if you want to buy machinery, if you want to buy laptop, if you you want to buy agriculture products, so everywhere you require the digits. So there are so in global trade, there are 1999 chapters, starting from chapter 1 to 99. And the first chapter is called the chapter. In the first two digits, that's represent the chapters. Other two digits represent the subchapter. So let me quickly explain you about it, how it's work actually. Uh, so we have a, so Nadeem, can you share my screen? Can you see my screen? Nadeem, आप मेरे साथ हैं? जी सर। Can you see my screen? जी Custom picker, right? So student, we have a, you know, website customspeaker.com. So after entering into the website, we have a chapter that's called the Pakistan Custom Tariff, that's called the PCT that I was referring. So here you can see from the chapter 1 live animal till chapter number 99 is a special classification and provision. So these chapters determining the your tariff actually, right? So let's talk about the live animal. So chapter, first two digits represent the chapter and the last two digits represent the subchapter, right? So let's talk about the animal, live horses. If you want to bring the live horse, what will be the custom duty and other factors? So you can see here there are eight digits. First two digits is the chapter 01 and the subchapter is 01, and the last four digits is varies country to country. It's determining the tariff. So if you come here, PCT code is of 0101.210. Short description is a pure breed uh, animals. Man description, live horse, mulls, different type of the horses there. Unit of measure, it means unit one, count one. Custom duties account for 3%, additional custom duty 2%, regulatory duty is around 5%, sale tax is 18%, value addition tax or additional income tax, sale tax that's 3%, and advanced income tax is 5.5%, right? So this numbers are very critical in order to calculate the lending factor. Suppose हमने एक हॉर्स खरीदा यूके से और वो पाकिस्तान लेके आना है, अब उसकी कॉस्ट क्या है? सपोज आपने 1000 USD में कॉस्ट में परचेज किया उसको यूके के अंदर, और जब आप कराची पे लेके आएंगे तो डू यू थिंक इज इट द $1000? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज उसके अंदर फ्रेट इन्वॉल्व हो गया आपकी, और पाकिस्तान के रेगुलेटरी टैरिफ इन्वॉल्व हो गया, राइट? और दूसरी जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आपके पास हिंड्रेंस आएगी वो आपको फुलफिल करनी है इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू द
in your country actually. So इसकी cost might be possible 1500 पर पहुंच जाए, 1600 पे पहुंच जाए, depending upon the tariff. Another important interesting factor is about the some Pakistan is a trade free trade agreement, as you know. ये पाकिस्तान की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है सब कंट्रीज के साथ, लाइक पाकिस्तान का एग्रीमेंट मलेशिया के साथ है, पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ है, पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ है, और पाकिस्तान का एग्रीमेंट सार्क के साथ भी, राइट। सो अगर इन कंट्रीज से आ रही है तो कस्टम ड्यूटीज आपकी वेव हो जाएंगी या रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह इंपोर्ट पॉलिसी प्रोविजन, जो कि मैंने स्टार्टअप में बताया था, डेट इज रिप्रेजेंटिंग द चैप्टर नंबर 13, कि क्या चीज़ हम कंट्री में ला सकते हैं, क्या चीज़ नहीं ला सकते। अब हम हॉर्स के ऊपर ही आते हैं, क्या हम हॉर्स को ड्यूटी पे करके, फ्रेट पे करके ला सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज उसके अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है, गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट भी, राइट। सो वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो यहाँ पे है, importable subjected to the quarantine requirement of L1 quarantine department of Ministry of National Food Security and Research, Government of Pakistan, whereas the import of wildlife species, including those mentioned in the Appendix 2 of the sites, shall be allowed only after obtaining NOC from the National Council for Conservation of the Wild Law. ठीक है, and subject to the गिविंग पैरा। तो हमने जब हॉर्स लेके आना है तो हमने ये तमाम पैरामीटर्स को फुलफिल करना है, अदरवाइज आपका हॉर्स पाकिस्तान में नहीं आएगा। एज यू नो कि एनिमल में या इंसानों के अंदर भी इनफैक्ट के चीज़ें कंटेजियस होती हैं, ठीक है, मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती हैं बड़ी क्विकली। सो अगेन अगर कोई बीमार जानवर आ जाता है आपकी कंट्री के अंदर, वो डेफिनेटली इट कैन डैमेज द, और इट कैन डिस्ट्रॉय द सम अदर एनिमल एज वेल। सो ये तमाम आप एलिमेंट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर, वी विल नॉट एबल टू ब्रिंग इट, ठीक है। तो पीसीटी इज कॉल्ड द पाकिस्तान कस्टम टैरिफ, और एचएस मतलब द हार्मोनाइज स्टैंडर्ड कोड। तो एचएस कोड ही का पाकिस्तान को पीएसटी बोला जाता है, इंडिया के अंदर इसको आईसीटी बोला जाता है, इंडियन कस्टम टैरिफ। श्रीलंका के अंदर एससीटी बोला जाता है, इधर श्रीलंकन कस्टम टैरिफ, ठीक है। सो हर कंट्री अपने लिहाज से इसको मैनेज कर रहा होता है, सब कंट्री में एचएस कोड ही बोला जाता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, राइट। सो आइडियली हमें जो चाहिए वो कमर्शियल इनवाइस चाहिए हमारे पास, नंबर वन डॉक्यूमेंट। एंड अदर देन कमर्शियल इनवाइस वी रिक्वायर्ड द पैकेजिंग लिस्ट। कमर्शियल इनवाइस क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी? कमर्शियल इनवाइस आपको ये बताएगी कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो उस वैल्यू की बेसिस के ऊपर अभी कस्टम ड्यूटी और टैरिफ एसोसिएट होगा। रिगार्डिंग द पैकेजिंग लिस्ट, पैकेजिंग लिस्ट आपको ये बता रही होगी कि उसका डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है उसकी शेप के हवाले से या डायमेंशन के हवाले से, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये बता रहा होता है कि किस कंट्री से ये मटेरियल बिलोंग करता है, राइट। अगर सपोज एक मशीनरी चाइना पे प्रोडक्शन है तो इसकी चाइना में कि जो कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा वो चाइना होगा, अगर सिंगापुर में है तो वो सिंगापुर होगा। सो बाय यूजिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारे जो एफटी के एग्रीमेंट का फ़ायदा या हम लेवरेज वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं होगा सो हम एफटीए का बेनिफिट नहीं उठा सकते, राइट। Another important document is the bill of lading. The bill of lading is one of the critical documentation in the global trade. इसके अंदर क्या चीज होती है बिल ऑफ lading के अंदर, कि जब आपकी शिपमेंट सी यानी कि फ्रेट के पास आपके पास जहाज पे चढ़ जाती है सी कैरियर के ऊपर, सो शिप वो कैरियर वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, दैट्स कॉल्ड द बिल ऑफ lading। सो इट्स शोइंग कि आपका मटेरियल या आपका कंटेनर जहाज के ऊपर चढ़ गया और मूव हो गया है, और ये इस साइन का इम्पोर्ट इंडिकेशन है, और ये शो कर रहा होता है कि ये अब कस्टडी में चला गया कैरियर की, राइट। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि जब नदीम साहब एक्सप्लेन कर रहे होंगे देन ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। और हाउ इट रन इनटू द पाकिस्तान थ्रू द पीएसडब्ल्यू। तो पाकिस्तान में 2013 से पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल होती थी, तमाम चीज़ें मैनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होती थी, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होती थी। उसके बाद वीबॉक आया। वीबॉक अगेन आई जस्ट वांट टू राइट इट हियर, वीबॉक इज अ वेब बेस्ड वन कस्टम, इसकी एब्रीविएशन है। अगेन पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन या सप्लाई चेन 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 का
कि एक वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट था जो कि कस्टम्स के अंदर हुआ वीबॉक की सूरत में। तो वीबॉक में क्या होता था, तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपकी मैनुअल से उठ के ऑटोमेटिकली या डिजिटली कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जो पीएसडब्ल्यू आया पाकिस्तान सिंगल विंडो इज अ मोर अपग्रेड। इसके अंदर बैंक्स और दूसरे इदारे जो एनिमल क्वारंटाइन हमने देखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट देखा है, ट्रैप और जितने अदर डिपार्टमेंट है वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि वीबॉक में नहीं थे, राइट। सो आई जस्ट वांट टू गिव और आई जस्ट वांट टू इनवाइट मिस्टर नदीम टू शो हिज स्क्रीन, और हमें नदीम थोड़ा सा पीएसडब्ल्यू के बारे में बताएं और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करा दीजिएगा नदीम, कि आप कब से काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, और किस तरह चीज़ें चलती थी पहले, और क्या चीज़ें किस तरह बीबॉक में आई, पीएसडब्ल्यू में आई। और हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा एक्चुअल सिनेरियोस एक्सप्लेन करें। एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला। ओवर टू यू नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान है और मैं यहाँ जाफर ब्रदर्स में तकरीबन 22 ईयर्स से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। इंपोर्ट में मुझे तकरीबन 15 साल हो गए और इस वक्त मैं जेबीएस का इंपोर्ट देख रहा हूँ। अच्छा, इंपोर्ट के हवाले से काशिफ सर ने तो काफ़ी आपको डिटेल में ब्रीफ किया है। अभी मैं आपको जो वीबॉक से रिलेटेड जो हमारा पुराना वर्जन था, मैं आपको उसका थोड़ा सा डेमो करा दूं। ये हमारा वीबॉक। नदीम आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओके ओके ओके। ये हमारा पुराना वर्जन है वीबॉक का। ये आप डिस्प्ले देख रहे होंगे। तो मैं लॉगिन होता हूँ और मैं इस पे आपको ये देखेंगे सारी ये जो शो कर रही हैं आपको, अपील मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैकिंग नंबर, ट्रेड फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी पहले। इसको मजीद अपग्रेड किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि अब पीएसडब्ल्यू के नाम से है, पाकिस्तान सिंगल विंडो। तो मैं आपको डेमो कराऊंगा। ये है पाकिस्तान सिंगल विंडो। आपको इसकी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इसमें ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। जब हम कोई भी नई कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रही होती है, इंपोर्ट कर रही होती है, तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करनी होती है वीबॉक में। बगैर रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी क्लियरेंस नहीं करवा सकेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन का है। इसके बाद मैं आपको गुड्स डिक्लेरेशन का दिखाता हूँ, जो हमारी शिपमेंट्स डिक्लेयर होती हैं इसके हवाले से। कि मैं एक शिपमेंट है। अच्छा, इसमें जो अभी हमारी बात काशिफ सर बात कर रहे थे कि जो रिक्वायरमेंट होती है इनवाइस वगैरह की, ये है इनवाइस। ये आपको नजर आ रही होगी, अपलोड करी भी है क्लियरिंग एजेंट ने, टैक्स इनवाइस। के अलावा बिल ऑफ लीडिंग की बात करी थी काशिफ सर ने। ये बिल ऑफ लीडिंग है। जब हम शिपमेंट कोई भी मूव करा रहे होते हैं तो हमारा ये फॉरवर्डर ये बिल ऑफ लीडिंग जो है पीएल अरेंज कर रहा होता है। इसमें ये देख लें आप, ये शिपर का नाम है, कंसाइनी है, जो फॉरवर्डर है उसकी डिटेल होती है, ये हमारे जो आइटम्स जो हमारे आ रहे हैं एचपी सर्वर, उसकी डिटेल होती है, एलसी नंबर है, क्रॉस वेट है, मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। और ये सब, ये कंटेनर सील नंबर है, ये बीएल की रिक्वायरमेंट है सारी। के अलावा इसकी हम जो इंश्योरेंस करवाते हैं, कोई भी शिपमेंट मूव करवा रहे होते हैं तो हमें इसकी इंश्योरेंस भी करवानी होती है, जिसकी ये डिटेल है इंश्योरेंस की। ये एलसी है, जो हमने जब ये शिपमेंट मूव कराने के लिए हमने ये जब एलसी हमने प्रोसेस करी थी बैंक से, बैंक के थ्रू ये ट्रांसमिटेड एलसी है। तो आप ये रिव्यू देख सकते हैं इसका, बैंक लेवल से खुली है। और ये एलसी नंबर, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर जो होता है, ये है। इसमें एक्सपायरी डेट,
लेटेस्ट शिपमेंट डेट की जो US डॉलर की इतनी की शिपमेंट की है, सारी इसकी क्लॉजेज होती हैं वो ये मेंशन करेंगे। के बाद है ये मैं आपको जो गुड्स डिक्लेरेशन की बात हुई थी, गुड्स डिक्लेरेशन मींस GD। नदीम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा बता दें करते पहला प्रोसेस किस तरह होता है, कौन इंटर कर रहा होता है। अगर आप थोड़ा सा स्टेप वाइज बता देंगे तो आई थिंक इट विल मोर इफेक्टिव एक्चुअली। स्टेप GD वन की में बात क्या हो कर रहा रहे है, हैं सर? टू में क्या हो रहा है, नहीं कंप्लीटली मैं बोल रहा था पीएसडब्ल्यू में जो डेटा आपका आया ना। जी जी। तो स्टेप वन क्या हुआ, जब इंपोर्ट्स के आपके पास कमर्शियल इनवाइस आ गई, पैकेजिंग लिस्ट आ गई, तो ये एलसी हमने ओपन किया, तो पहला स्टेप्स क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी एक्सप्लेन। सो जस्ट एक्सप्लेन इट कि किस तरह पीएसडब्ल्यू को पता लगता है कि आपकी इंपोर्ट्स आ रही हैं, और बैंक का क्या रोल होता है, आपका क्या रोल होता है, कस्टम क्लियरिंग एजेंट का किस तरह रोल होता है, और किस तरह शिपमेंट गेट आउट हो रही है। तो अगर इसको एक प्रोसेस वाइज आप स्टेप्स के बता देंगे तो आई थिंक इट विल ठीक है, ओके सर। अच्छा, थैंक्स। एक्चुअली कोई भी LC प्रोसेस होने से पहले हमें जो भी बिजनेस यूनिट होता है उसकी तरफ से एक अप्रूव ऑर्डर फॉर्म आता है, जिसकी बेस पे हम अप्रूव ऑर्डर फॉर्म और सप्लायर की तरफ से परफॉर्मा इनवाइस आती है, जिसकी बेस पे हम LC प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अपने कॉर्पोरेट से इंक्लूड करके बैंक की नॉमिनेशन लेते हैं, उस बैंक की नॉमिनेशन की बेस पर हम वो LC प्रोसेस करते हैं। LC प्रोसेस करने के लिए हमें सबसे पहले परफॉर्मा इनवाइस चाहिए होती है, उसकी जितनी भी क्लॉजेज वगैरह वो सब हम उसको इंक्लूड करते हैं। फिर वो बैंक में हम LC प्रोसेस करते हैं। LC प्रोसेस करने के बाद बैंक हमें उसका ड्राफ्ट सबमिट करता है कि ये LC, हमने LC ड्राफ्ट दिया। LC ड्राफ्ट हम वेट करते हैं। LC ड्राफ्ट वेट करने के बाद अगर उसमें कोई करेक्शन है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी ऐसी आ रही है, वो करेक्शन करने के बाद हम बैंक को कहते हैं कि इसको LC ट्रांसमिट कर दें। LC ट्रांसमिट होने के बाद बैंक हमें LC ट्रांसमिटेड कॉपी देता है, जो हम सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं, सबमिट करते हैं कि ये LC ट्रांसमिट हो गई है। सप्लायर के बैंक को जब ये LC ट्रांसमिट हो जाती है तो वो हमें इंटीमेट करता है कि ये LC ट्रांसमिट हो गई है, ठीक है। वो वेट करता है उसको, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो हमें इन्फॉर्म करता है, वरना उसको फिर वो एक्सेप्ट करके जो भी शिपमेंट हमारी वहाँ से हमने इसको बुकिंग करवाई होती है ऑर्डर, उसकी वो प्रोडक्शन कंप्लीट करता है। प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद वो हमें इंटीमेट करता है कि ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है प्रोडक्शन इसकी, आप इसको क्या कहेंगे उसे, मूव कराइए। फिर जब वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम अपने फ्रेट फॉरवर्डर को एंगेज करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर और उसको सारी डिटेल देते हैं कि ये सामान यहाँ पे रेडी हो रहा है, फर्स्ट सिंगापुर में रेडी हो रहा है, यहाँ से सामान उठना है। फ्रेट फॉरवर्डर उसको एंगेज करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर वो सारा सामान जो भी है उसे वेसल बुक करवा के मूव कराता है। और जो अभी BL की बात होती है, बिल ऑफ लीडिंग, वो हमें एक प्रोवाइड करता है कि ये बिल ऑफ लीडिंग जस्ट लाइक उसमें सारी डिटेल आ रही होती है, LC नंबर, टोटल वेट, ग्रॉस वेट, सारी चीज़ें। तो वो हम उसको वेट करते हैं, BL को वेट करने के बाद हम उन्हें ओके करते हैं। BL जब ओके हो जाता है तो हमारा फॉरवर्डर जो है, जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर के बैंक को वो सबमिट करवाता है। BL और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी इनवाइस और ये सारी चीज़ें वो उनके बैंक में सबमिट होती है, जिस और हमारी शिपमेंट जो है मूव हो जाती है वहाँ से। जब हमारी शिपमेंट मूव हो रही होती है तकरीबन 10-15 दिन का टाइम है सिंगापुर से कराची का, बाय सी। इतने अरसे में हमारे बैंक में सप्लायर के बैंक से डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं। हम बैंक हमारा इंटीमेट करता है कि ये इंटीमेशन डॉक्यूमेंट्स की आ गई है, आप इसको रेट करवाएं। हम अपने कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी बेस पे वो हम डॉक्यूमेंट्स के रेट्स करवाते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स मीन्स हमारी जो ओरिजिनल BL होता है, जिसकी बेस पे हमें DO मिल रहा होता है। उसके बाद हम अपने क्लियरिंग एजेंट को इन्वॉल्व करते हैं, उसको तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स और इनवाइस वगैरह, इंश्योरेंस क्लियर, उसको प्रोवाइड करते हैं। उससे कहते हैं कि आप उसकी हमें डिमांड दें। तो इस डिमांड के लिए वो क्लियरिंग एजेंट जो है ये
PSW को यूज करता है। PSW के अलावा मैं आपको एक चीज और दिखा दूं इससे पहले, जो FI अप्रूव होती है। नदीम, ये FI क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन कर देगा काइंडली एक प्लीज। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि जब हम LC ओपन कर रहे होते हैं तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक फिलअप कर रहा होता है सारा। ये ये हमारा सारी डिटेल होती है, हमारे IBN नंबर है, हमारे ट्रेडर का नाम है, बेनिफिशियरी का नाम आता है, और जो हम चीजें मूव करा रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मा इनवाइस में आइटम है, बैंक ये सारी चीजें इसके अंदर फिलअप करता है। पहले ये जब वीबॉक था तो हम लोग फिलअप करते थे, हमारे एंड पे होता था, लेकिन जब से इन्होंने एडवांस किया है तो अब ये बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक इसको फिलअप करता है। और ये हमें बेनिफिशियरी इसका, ये हमें एक इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नंबर ये आ जाता है हमारे पास। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है हम अपने क्लियरिंग एजेंट को देते हैं कि ये फाइनेंस, इस शिपमेंट के अगेंस्ट ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नंबर है। वो इसको जब क्लिक करता है तो ये सारी चीजें जो इसमें आ रही हैं वो उसको ऑटोमेटिक उसके पास डिलीवर्ड होती हैं, और इस बेस पे वो GD बना रहा होता है, डिमांड, ड्यूटी एंड डिमांड जो होती है। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, डिमांड जो बनाता है वो गुड्स डिक्लेरेशन में हमें शो हो रहा होता है। ये है गुड्स डिक्लेरेशन GD, जो कि हमारा क्लियरिंग एजेंट एंट्री डाल रहा होता है। और ये देख लें आप, जो HS कोड की बात हो रही थी, 84715000, ये हम इसमें इसमें हमने सर्वर मंगाया और सर्वर का HS कोड 84715000 है। इस पे ये कस्टम ड्यूटी 3%, सेल्स टैक्स 18%, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2%, एडिशनल सेल्स टैक्स 3%, और इनकम टैक्स 6% से हो रहा है। ये सारी इसकी कैलकुलेशन है जो करते हैं। और ये इसी तरह ये सारी गुड्स डिक्लेरेशन होता है। टोटल ये इसका आपका ये नंबर आ रहा है GD का, ये जिस डेट को GD सबमिट हुई है वो नंबर है, ये इनका अपना GD का नंबर है। इस तरह ये हमें GD प्रोवाइड करते हैं, उसकी बेस पे हम अपने पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद पे ऑर्डर्स या पेमेंट होती है, जो कि इनके पोर्टल पे शो हो जाती है कस्टम क्लियर्स वालों के। तो ये पेमेंट्स होने के बाद कस्टम का सारा प्रोसेस होता है। कस्टम के प्रोसेस अगर वो ग्रीन में निकल रही है तो तकरीबन 2 डेज के अंदर हमारी शिपमेंट्स क्लियर हो जाती है, गेट आउट। और अगर एग्जामिनेशन में जाती है तो वो असेसमेंट में जाती है, अप्रेजर के पास रिव्यू होती है, और उसके बाद फाइनल होकर वो शिपमेंट गेट आउट होती है। गेट आउट होने के बाद हमारे वेयर हाउस में आती है। वेयर हाउस में आकर जो भी है उसको चेक किया जाता है एज पर इनवाइस पूरी शिपमेंट्स को। और उसके बाद उसकी कॉस्टिंग होती है, GRN रिसीव होती है, कॉस्टिंग डन होती है, और फिर कस्टमर को वो इनवाइस हो जाती है। जी सर। थैंक यू सो मच नदीम। एंड और अगर नदीम, इसके अलावा चैलेंज क्या क्या आते हैं, अगर थोड़ा सा चैलेंज के हवाले से बताइएगा। चैलेंज किस हवाले से सर? काम कस्टमर से ऑटोमेशन हो गई, पहले सारा काम मैनुअली होता था, राइट? बिल्कुल। और आप माशाल्लाह से 22 ईयर से ज़्यादा आपको हो चुका है, और आप उस दौर में भी काम किया है जब मैनुअल काम होते थे कस्टम्स का। जी। और अभी आपके पास चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं, तो बेनिफिट्स क्या हासिल हो रहा है वो बता दें, और कोई डिसएडवांटेज है या चैलेंज आपको लगता है वो आप उस लिहाज से थोड़ा सा बेनिफिट्स तो एक्सप्लेन काफी करता हूँ। ज्यादा हो गए हैं सर, कि जब से ये PSW के थ्रू पेमेंट होती है। पहले होता था कि वो पे ऑर्डर बनते थे, समटाइम्स पे ऑर्डर 1 दिन 2 दिन के अंदर वो सबमिट हो रहे हैं। वो पे ऑर्डर लेके क्लियरिंग एजेंट जो है जाके वहाँ पे लाइन में लगता था, वहाँ पे बारी आती थी, उस सेम डे में निकल गया तो सेकेंड डे में हो रहा है। अब जब से इन्होंने PSW में इन्होंने एक ऑप्शन डाल दिया है पेमेंट का, जो कि हमारा कॉर्पोरेट डायरेक्ट उसको बैंक को चेक सबमिट कराता है, और वो डायरेक्ट पेमेंट जो है कस्टम क्लियरेंस के पोर्टल पे शो हो जाती है। उसमें ये नहीं होता कि क्लियरिंग एजेंट जाके क्यू में लगा हुआ है वो चेक लेकर या पे ऑर्डर लेकर। तो इसमें हमें काफी टाइम, और वो विद इन
15 मिनट के अंदर हमारे पास हमारे पोर्टल पे भी शो हो जाता है कि शिपमेंट जो प्रोसेस हो गई है ये, अगर वो क्लियरेंस में चली गई है वो हम सब इसको देख रहे होते हैं। पहले हमें सारा फोन करके कंफर्म कर रहे हैं कि अब शिपमेंट के क्या स्टेटस है। हम क्लियरिंग एजेंट के ऊपर पूरा डिपेंड करते थे, लेकिन अब जब से हमारे पास ये PSW आया है या विभोग था, हम खुद पोर्टल पे जाके उसको चेक कर रहे होते हैं और हमें तमाम उसकी जो डिटेल है व्यू हो रही होती है कि अब क्या प्रोसेस, अब क्या प्रोसेस हमारे सामने है। और काफी फास्ट प्रोसेस हो गया इस पे पहले से ज्यादा। फैंटास्टिक। कोई नुकसानात भी हुए हैं नदी में से? तो नुकसानात तो नहीं हुए, बेहतरी की तरफ आए हम, नुकसानात तो नहीं हुए। पहले मैनुअल होता था, वो मैनुअल का ये सिस्टम था कि उस वक्त तो GD सबमिट हो जाती थी, फिर हम पूरी वो जब GD हमारे पास आती थी हम उसे फॉर्म फिलअप करके हाथ से मैनुअल, फिर वो बैंक में दोबारा सबमिट करवाते थे, वो डबल काम होता था। चलें, फैंटास्टिक। एनीथिंग एल्स नदीम यू वांट टू मेंशन? Thanks a lot, Nadeem. Appreciate your time and थैंक यू सर। thank you so much. Take care. Have a nice day. Bye bye. अल्लाह हाफिज।